A very good morning to all. Myself Patel Manisha from RAKVB School, Bhopal. Dear students, I hope you all are fine at your place and I'm glad that you are doing so well. Okay, so be continue with this online study. Today we are going to complete our second unit, that is Scientists and Inventions. Today we are going to do part 2, that is famous discoveries and invention. In part 1 we saw famous scientists and their inventions. So this is the part 2. This is also a very interesting story. This story is about a Greek scientist. So shall we start our reading? Okay, let's start here. Archimedes was a Greek scientist. He lived in Syracuse nearly 2000 years ago. The king of the land wanted to wear a golden crown. So this is a story about a Greek scientist whose name is Archimedes and a king. The scientist Archimedes lived in Syracuse. Syracuse is a name of a city in New York. This is the story about, or nearly we can say 2000 years ago. आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट था. वो सायराक्यूज जो कि एक न्यूयॉर्क में सिटी है, आज से 2000 ईयर्स पहले वो वहाँ रहा करता था. आफ्टर दैट सी द नेक्स्ट लाइन, द सेकेंड वन. The king of the land wanted to wear a golden crown. The king has a wish that he wanted to wear a golden crown. उसकी एक इच्छा थी कि वो गोल्डन क्राउन पहने, सोने का मुकुट पहने. Then the next line. He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown. Here, in order to make the golden crown, he had appoints the goldsmith. So, what did king do? Yes, he gave the goldsmith a certain number of gold coins having a specific weight, and he told the goldsmith to make a golden crown. See here, students, what the king did. King ने क्या किया? Because as he wanted to wear a golden crown, उसने कुछ क्वांटिटी में गोल्ड उस गोल्ड स्मिथ को दिया है और उसको ऐसा बोला कि इससे आपको एक गोल्डन क्राउन बनाना है. फाइन. हियर सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंड. आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग. As once the goldsmith got an order by the king, the goldsmith did so. गोल्डस्मिथ ने राजा के द्वारा जो आदेश मिला था उसके अनुसार ही उसने ऐसा किया. एंड ऑन द अपॉइंटेड डे द गोल्डस्मिथ ब्रॉट द किंग द क्राउन. और जब राजा के द्वारा उसको बुलाया गया एक अपॉइंटेड डे पर, तब वो उस क्राउन को लेकर के राजा के पास आया. नाउ द नेक्स्ट लाइन. द क्राउन वॉज वेट. और उस क्राउन का वजन किया गया. द क्राउन दैट इज ब्रॉट बाय द गोल्डस्मिथ, द किंग वेट दैट क्राउन. किंग ने उस क्राउन का वजन कराया. द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्डस्मिथ बाय द किंग. एंड फाइनली दे नोटिस दैट the weight of the crown and the weight of the gold is totally equal. दोनों का जो वेट था क्राउन का और गोल्ड का वो टोटली इक्वल था. एंड इज द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन व्हेन goldsmith brought the crown. Immediately the king looked at the crown and he find that the color of the crown was little bit change. उसको ऐसा लगा कि शायद ये क्राउन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज है, प्योर गोल्ड जैसा नहीं दिख रहा है. Now here next line, he suspected that the goldsmith had stolen some gold.
Okay. Now by noticing this, that the color of the crown is slightly changed, the king was not very satisfied. The amount of gold that the king had given the goldsmith, all of it was not used by the goldsmith to make the crown. Some amount of the gold had been stolen by the goldsmith. And see, the goldsmith had actually used silver along with the gold to make the king's crown. See, there is a great difficulty with the king. किंग ने क्या सोचा कि मैंने जो उसको गोल्ड, कुछ अमाउंट का जो गोल्ड दिया था क्राउन बनाने के लिए, उस गोल्ड स्मिथ ने पूरा का पूरा वो गोल्ड का यूज नहीं किया है. उस राजा को क्या डाउट था कि उसने शायद गोल्ड के साथ साथ में सिल्वर को भी मिक्स करके ये क्राउन बनाया है. देन व्हाट हैपेंड? नाउ सी द नेक्स्ट लाइन हियर. But the king was not sure. Although he was thinking all this, वो ये सब कुछ सोच रहा था, but he was not sure whether he is right or wrong. वो सही है कि नहीं, वो इसके बारे में श्योर नहीं था. The king want to find out the truth. He asked his court scientist Archimedes to find out. Here, so now the king was greatly unsatisfied, and he believed there was only one person who could solve the problem. And who was that person? Yes, it is very clearly mentioned here, that is scientist Archimedes. उसको एक ही पर्सन पे ट्रस्ट था कि इस पूरे राजमहल में, पैलेस में, one person is there who can solve my problem. Isn't it? So this one person was Archimedes. और ये वही one person कौन था? ये one person था Archimedes. Now see the very next line. The king said, find out how much gold has been stolen. When the king called the Archimedes, a scientist, the king has given an order to the Archimedes that find out how much gold has been stolen by the goldsmith to make this crown. इस क्राउन को बनाने के लिए गोल्डस्मिथ के द्वारा कितना सोना चुराया गया है. Isn't it? This responsibility was given to the Archimedes by the king. किंग के द्वारा उसको ये ऐसा ऑर्डर मिला. How to find out the truth? Okay, ट्रूथ का पता कैसे लगाना है? Archimedes thought about the problem day and night. Now see, once having the responsibility to solve the problem, Archimedes was greatly involved in thinking, philosophies as well as science. जो आर्किमिडीज था ना, वो हमेशा किस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व रहता था? फिलोसॉफीज में. ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है, किस कारण से होता है. इजंट इट? एज वेल एज वो साइंस में भी बहुत बिजी रहते थे. एंड द किंग बिलीव दैट इट वॉज द ओनली आर्किमिडीज who could solve this problem. Isn't it? और किंग को भी भरोसा था कि आर्किमिडीज ही ऐसा वो व्यक्ति है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. सो व्हाट किंग डिड? यस, द किंग asked Archimedes to find out whether the gold stolen by the goldsmith or not. गोल्डस्मिथ के द्वारा गोल्ड चुराया गया कि नहीं, ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. नाउ द नेक्स्ट लाइन. एंड ही यूज्ड टू थिंकिंग डे एंड नाइट. Continuously he used to thinking. Now one day he was about to have his bath, but he was busy thinking. He did not notice the bath. Now listen here. So one day when Archimedes was taking his bath in the bathtub, and he was wondering मतलब सोचना, thinking, he was wondering about the king's problem. So still deep in thought about the king's problem, Archimedes stepped
into his bathtub. वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग में लगा हुआ था बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द किंग. सो ही वॉज इन अ वेरी डीप थिंकिंग. वो बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहा था. एज इवन ही डिडंट नोटिस द बाथटब. उसने वो बाथटब को भी नोटिस नहीं किया. नाउ सी इन द वेरी नेक्स्ट लाइन. उसके बाद क्या हुआ? This is the very interesting story, isn't it? Are you taking the interest now? Yes. The water in the bathtub was already full to the brim. And what happened? That when he was going to take the bath, he noticed that the bathtub was already full to the brim. उसका जो एज होता है ना, ऊपर का टॉप लेवल, वहाँ तक पूरा का पूरा bathtub भरा हुआ था. And he slid into the bathtub. Why he slid into the bathtub? Who slid into the bathtub? Yes, Archimedes. He slid into the bathtub. वो bathtub में फिसल गया because he was very busy in thinking that how to solve the problem. Then what happened? That suddenly, as he slid where into the bathtub, he noticed that a certain amount of water spilled out. So he noticed that immediately a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub. He noticed this. Here Archimedes noticed that a certain amount of water spilled out. कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ गया. वाई? यस, बिकॉज ही स्लिड इनटू द बाथटब. ही वॉज शॉक्ड दैट व्हाट वॉज एक्चुअली हैपनिंग हियर. उसको थोड़ा ऐसा शॉक लगा कि ये क्या हो रहा है. मैं फिसल गया उसके अंदर तो इतना सारा पानी बाहर क्यों आ गया. वाई दिस इज हैपनिंग. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार उसने नोटिस किया, अगेन ही डिड लाइक द सेम. दोबारा फिर से उसने ऐसा ही किया, फिर से वो थोड़ा फिसला. अगेन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोड, इजंट इट. कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिर से वो फिसल गया. देन आर्किमिडीज स्टेप्ड आउट ऑफ द बाथटब. उसके बाद में क्या हुआ? सडनली देयर वॉज अ नेक्स्ट लाइन, अ फ्लैश इन हिज माइंड. अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया. An idea come in his mind. He jumped out of the bathtub shouting, Eureka, Eureka. Now see the next line. What is the meaning of Eureka, Eureka? It means simply I found it. मुझे मालूम चल गया है, मुझे पता चल गया है. जब वो बाथटब में नहाने गया, अचानक से उसका पैर फिसला, कुछ पानी, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आ गया. तो सडनली उसके माइंड में एक विचार आया और वो तुरंत बाहर जंप किया उसने और शाउटिंग करने लगा, दैट आई हैव फाउंड इट. मुझे मालूम चल गया, मुझे पता चल गया. हियर एज ही बिलीव दैट ही फाउंड आउट द सॉल्यूशन, ही वेंट टू द किंग एंड सेड. क्योंकि उसको ऐसा बिलीव था कि मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल गया है, राजा ने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर मुझे मिल गया. देन व्हाट ही डिड? ही वेंट टू द किंग्स पैलेस. Thus, it was found that different metals of the same weight have different volumes. When Archimedes was thinking, and after a long process of thinking, he had an idea in his mind by observing the activity that is happened with him. जब वो बाथटब में स्लिड हो गया, फिसल गया और कुछ पानी बाहर फ्लोर पर बह गया, तो उसने एक चीज नोटिस की. और वो चीज क्या थी कि जब हम पानी के अंदर किसी चीज को डालते हैं तो थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है और उस पानी की जगह वो ऑब्जेक्ट ले लेता है जो भी हम उसके अंदर डालते हैं. इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सपोज देयर इज अ टब filled with water at the brim, at the edge.
and if you will keep or put a ball in the tub, what will happen? Some of the water flows, कुछ पानी बह जाएगा. क्यों? क्योंकि वो वाटर की जगह उस ऑब्जेक्ट ने ले ली है. बट द वेट विल बी द सेम. उसका जो वेट है वो सेम ही होगा, क्योंकि कुछ पानी बाहर निकला, उसकी जगह किसने ले ली? वो बॉल ने ले ली. Isn't it? But the volume will be the different. जो उसका स्पेस है, बॉल की जो स्पेस है वो अपने शेप और साइज के अकॉर्डिंग कवर करेगा. पानी का जो स्पेस है, स्पेस जो पानी कवर करता है वो उसके अकॉर्डिंग कवर करता है. Isn't it? So here simply means अगर आप किसी चीज को पानी में डालते हैं, अगर वो फुल्ली भरा हुआ है तो थोड़ा सा पानी बाहर आ जाएगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा. लेकिन उस पानी की जगह डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट ले लेता है. तो उसमें वो जो वाटर लेवल है ऊपर तक का, वेदर इट इज अ बिग टब और वेदर इट इज अ स्मॉल टब, चाहे वो बिग टब हो चाहे वो स्मॉल टब हो, लेकिन फुल फिर से अगेन वाटर अपने लेवल को कवर कर लेता है. इन द वेरी नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ हियर, thus it was found that different metals of the same weight have different volume. What he found that different metals are there. Example like iron, copper, aluminium, silver, isn't it? So many metals are there. All the metals are same in weight. They are same in weight. But what is the difference between? See, the difference is their volume. सभी मेटल्स का वेट तो सेम होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम डिफरेंट होता है. एज आई सेड, एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज द वॉल्यूम? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ जो स्पेस कवर किया जाता है उसी को ही वॉल्यूम बोलते हैं. Isn't it? So वेट तो सभी का सेम ही होता है. सभी का आप वेट करेंगे, यू विल फाइंड द वेट इज इक्वल, लेकिन जो उसका स्पेस कवर करने का जो होता है वो समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर मेटल. सो हियर इट इज रिटन दैट ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर. इफ वी आर कीपिंग एन ऑब्जेक्ट और पुटिंग एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, सम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, कुछ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज इंस्टेड ऑफ वाटर द ऑब्जेक्ट टुक प्लेस. पानी की जगह किसने ले ली? उस ऑब्जेक्ट ने ले ली. सपोज आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. देयर इज अ टब फिल्ड विथ वाटर. पूरा का पूरा वो भरा हुआ है. इफ यू विल पुट अ बॉल इन द टब, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोड, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल आएगा, फ्लोड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो जो पानी बाहर आया उसकी जगह किसने ले ली? यस, डेफिनेटली द बॉल हैज टेकन the place of the water, because water already displaced, वो water already बाहर चला गया, displaced हो गया. So he found that, what he found, the displaced water will be equal to their volume. जो displaced water है वो उसके volume के equal होता है. Here it means to say that in a very simple manner, when Archimedes found that he got the solution for this problem, he went to the king palace and said the king that actually what was wrong. वो king के पैलेस में गया और उसने बताया कि गलत क्या हुआ था. Isn't it? उसने उसके बारे में इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज को, इस घटना को ऑब्जर्व करते हुए आर्किमिडीज ने ये फाइनल डिसीजन लिया. With the crown he demonstrated in front of the kings that the crown the goldsmith given him was actually impure. उसने ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया राजा के सामने कि गोल्डस्मिथ को जो गोल्ड दिया था क्राउन बनाने के लिए, एक्चुअली वो इम्प्योर है, वो प्योर नहीं है. कैसे पता चलेगा कि हाउ इट वॉज नॉट प्योर गोल्ड? यस, over here Archimedes performed the very simple experiment. आर्किमिडीज ने एक खूब सिंपल सा एक्सपेरिमेंट राजा के सामने किया ये प्रूफ करने के लिए, वेदर इट इज प्योर गोल्ड और नॉट. व्हाट ही डिड? ही टुक 2 containers that was completely filled with water to the brim.
उसने 2 कंटेनर लिए जो कंप्लीटली ब्रिम तक यानी एज तक पानी से भरे थे. एंड ही प्लेस देयर इन अ ट्रे विथ मार्किंग ऑन इट्स हाइट. उसने क्या किया, ट्रे के अंदर दोनों कंटेनर को, है ना, छोटे कंटेनर होते उसको लेकर के आया और उसने एक सम पॉइंट वहां पे मार्किंग कर दिया. Isn't it? After that what he did, उसने एक में गोल्ड डाला और एक में क्राउन डाला. एंड आफ्टर दैट they noticed that when they put the gold in the water, certain amount of water flows or displays, कुछ amount of water displays हो गया. But in the second case, in the second container, when Archimedes put the crown in the second container, isn't it, the water that flows or water that displays more is more than the first container. जो पानी बाहर आया ना वो थोड़ा ज्यादा लेवल का बाहर आया, इसलिए उनको पता चल गया कि ये जो गोल्ड क्राउन जो बनाया गया है गोल्ड से वो इम्प्योर है. अगर प्योर होता तो दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ वाटर या सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकला उसमें डिफरेंस था. तो ये उसने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा राजा को शो किया. एंड वेरी इंटेलिजेंटली और वेरी क्लेवरली ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज गिवन बाय द किंग टू हिम. उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसने बहुत ही अच्छी तरह से इसको सॉल्व किया. So this was the story of the king and a very clever scientist. The name that is Archimedes. Isn't it? Archimedes बहुत ही ब्रेवली और बहुत ही हम कह सकते हैं कि वो अपना उनका माइंड बहुत शार्प था. वो हर चीज को बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन वो किया करते थे एंड सॉल्यूशन का, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकालते थे. Okay, have you enjoyed the story? Yes, definitely. This is very interesting and amazing story. Fine. So here our story ends. Now next, there are some activities. But right now we are not going to do all these activities. I am going to provide all the activities with the answer key later on in the WhatsApp. So check your WhatsApp as on regular time from 4 to 6 p.m. Okay, now in the next class we will start our next chapter. We will meet again with the new unit, that is unit number 3. Till then, complete your homework and stay home, stay safe.